Folks, I hope you all doing good. We have finished our last topic, the cell unit. We have already completed the topic, including your prokaryotic and eukaryotic cells, the functions and the organelles of the cells, right? So today our topic is related to the cell cycle and its a division, right? It's a very important topic. Why it's so important? Because the maximum questions in your NEET exams or any entrance exams comes from the this part of unit, right? So listen very carefully, and if you have any query, please mention everything in the comment section so that I reply to your specific questions, right? So let's begin with the cell cycle. It's an introduction part. We will discuss. Now, what is the cell? As we already have finished our topic related to cell and its organelles, everybody knows that the cell is split into the two parts, right? The different or two parts. Why I said the two parts? Because during the different phases, during the different by completion the cell cycle, there are the two processes has been done basically, which is the cycle will be complete into the two processes. What I said, the mitosis and the meiosis, right? That processes we will discuss later on. First of all, what is the how the cell cycle proceed? Basically, why it's necessary to be get the entire cycle has need to be completed, right? So जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होती है जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है आपके, ठीक है, वो एक डिवीजन के थ्रू होती है, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, देयर वुड बी अलार्जमेंट ऑफ द सेल्स। आपका सेल डिवाइड करेगा, वो इनलार्ज करेगा, ठीक है। उसके जो डिवीजन के साथ आपके डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होंगे, वो हम जैसे जैसे पार्ट कंप्लीट करेंगे यू विल गेट टू नो। बट बेसिक जो सेल साइकिल का इंट्रो है वो है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंड on the division of the cell, and it's important for the enlargement of the cells. Clear? Now, the mechanism by through the division and the multiplications of the cells together constitute is called the cell reproduction, right? What we call to that cell reproduction. Now, cell cycle, the entire life period of cell cycle in which the synthesis, the growth and the division of two daughter nucleus cells has been generated, that process is known as a replication. By through the cell is synthesized DNA, your genetic material, right? The cell growth is complete. You can see here, I will show you with the example. The cell growth in the cytoplasmic, with the help of the cytoplasmic increase, it would be the continuous process, okay? जो डीएनए सिंथेसिस है वो एक स्पेसिफिक मतलब स्टेज पे आके होती है डीएनए की सिंथेसिस। जब हम आपका ये सारा डिटेल माइटोसिस मियोसिस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आगे एडवांस क्लासेस लेंगे, तब आपको ये चीजें अंडरस्टैंड होगी। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स यू मस्ट बी नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, हाउ द cell cycle is important for us, how the cell cycle is divided, and it follows the two different pathways, mitosis and meiosis, right? So we are just creating the base of the cell cycle. Again, okay, again I'm repeating this phase, that what is happen in the cell cycle. This is a life period of the cell, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, देन ग्रोथ is another process, then divide into the two daughter cells, right? जिस प्रोसेस से सिंथेसिस होती है उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जो सेल की ग्रोथ है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। सेल की ग्रोथ क्या होता है कि ऑलवेज ये एक कॉन्टिन्यूटी में होती रहती है, राइट? जो डीएनए सिंथेसिस है ये एक स्पेसिफिक स्टेज, जो आपकी हम एस फेज एम फेज वो सारे स्टेजेस करेंगे ना, तब एक स्पेसिफिक स्टेज पे डीएनए की सिंथेसिस होनी शुरू होती है, वो हम स्टेज भी डिस्कस करेंगे, राइट? आगे जाके आता है कि सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल ये देखिए, सेल साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है। सेल साइकिल वेरीज करता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल टाइप में, ठीक है। वो साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा, वो साइकिल कब शुरू हो रहा है, किस स्टेज पे शुरू है, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। बट जो हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं, ह्यूमन सेल्स टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स एवरीबडी नोज, ठीक है। यहाँ पे 24 आवर्स के लिए सेल साइकिल इज वर्कड है, ठीक है। जो यीस्ट होती है,
ठीक है, यीस्ट होगी, फंगस होगी, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, मैक्सिमम में 90 मिनट्स का सेल साइकिल चलता है, ठीक है। नाउ आई हैव टोल्ड अर्लियर, ऊपर अभी मैंने बोला था एम फेज, एस फेज, ठीक है, ये जो फेजेस हैं, ये फेजेस हैं सारे, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, यू मस्ट बी क्लियर इफ यू रियली वांट गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द सेल साइकिल। दिस इज द बेस ऑफ सेल साइकिल, हाउ इट स्टार्टेड, इन विच to follow the pathways it completed, right? Okay, बेसिकली जो सेल साइकिल है आपका दो फेजेस में कंप्लीट होता है। वन योर इंटरफेस, सेकेंड योर एम फेज, बेसिक जो आपका सेल साइकिल कंप्लीशन है। यहाँ पे आपका सेल साइकिल जो एम फेज है, यहाँ पे कंप्लीशन होगा, इंटरफेज आएंगे ये सारे, बाकी सारा ये इंटरफेज आ गया, दिस इज योर इंटरफेस, ठीक है। जी नॉट, जी वन, ठीक है, एस फेज, ये आगे जाके हमें पता चलेगा। अभी इंटरफेस क्या है, ये एक रेस्टिंग फेज है, ये देखिए इंटरफेस क्या होता है, बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेसेस, दिस इज द टू सक्सेसिव एम फेसेस के इन बिटवीन ये आपका क्या है, रेस्टिंग फेज है, जिसमें क्या होगा, सेल ग्रोथ एंड डीएनए का सिंथेसिस होगा। अभी उन्होंने बोला था ना एक स्पेसिफिक स्टेज पे क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, दैट्स व्हाई आपका जो डीएनए सिंथेसिस है वो जो एम फेज है, ठीक है, ये वाला, ये इंटरफेस, ये एम फेज को कंप्लीशन और मतलब स्प्लिट हो गया टू में पार्ट्स में, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद यहां से आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन शेड है, दिस इज योर इंटायर इंटरफेस। अभी इंटरफेस में दो चीजें हो रही हैं, एक आपकी सेल ग्रोथ हो रही है, दूसरा डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। ये लास्ट करेगा 94% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। 95% ही सेल आपका जो मूवमेंट में रहेगा, रेस्ट ऑफ ये रेस्टिंग फेज में रहेगा, ठीक है, 95%। अभी एम फेज में क्या है, जो इंटरफेज है ना, उसके आगे जाके तीन फेजेस है, ठीक है, जो आप इजीली देख सकते हो, दिस इज योर इंटरफेस आई, ठीक है। आगे जाके उसके थ्री फेजेस हैं, जी वन फेज, ये रहा दिस स्काई ब्लू शेड, ठीक है। जी वन फेज हो गया जिसे हम एंटी फेज भी बोलते हैं, एस फेज सिंथेटिक फेज हो गया, जी टू गैप टू फेज, ठीक है, ये रहा जी वन, जी नॉट, एस फेज, ये सारे का क्या काम करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बोला कि जी वन फेज जिसे हम गैप वन और एंटी फेज भी बोलते हैं, ये सबसे पहले तो क्या करेगा, फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है ये, ठीक है। जो जी वन फेज है ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ये रहा आपका यहाँ पे फर्स्ट ग्रोथ फेज है। दूसरा क्या है, ये इंटरनल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है दिस फेज, एक तो आपकी माइटोसिस होने में, ठीक है, माइटोसिस होने में, एंड दूसरा डीएनए जो आपकी रेप्लिकेशन प्रोसेस थी उसमें, ये एक तरह से इंटरवल का काम कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, दो चीजें जीवन फेस कर रहा है। अभी इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल को करवाते रहना, ठीक है, जीवन फेज से ही कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। जो आपका सेल मेम्ब्रेन सेल है ना पूरे का पूरा, वो एक तरह से मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द जीवन फेज वर्किंग, इट लीड्स टू द एक्टिवली maintain the metabolic phase of the entire cell, क्लियर। तीसरी चीज क्या कर रहा है आपका जीवन फेज, ये प्रिपेयर्स कर रहा है मशीनरी, मशीनरी किस चीज को चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। इसी फेज में डीएनए के जी वन फेज में ही मशीनरी प्रिपेयर होती है, किस चीज को बनाने के लिए, आपकी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए, ठीक है। फोर्थ चीज क्या हो रही है कि सिंथेसिस आरएनए एंड प्रोटीन्स भी यहाँ पे हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोर रीजंस, ठीक है। इसका मेन काम जो है वो है इसका कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल करवाना, दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करके रखना और उसे प्रोसीड करवाना, तीसरा ये सारी मशीनरी प्रिपेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन की, मोर ओवर इट ऑल्सो सिंथेसाइज आरएनए एंड इट्स प्रोटीन्स। जी1 फेज का काम पता चल गया। मूव टू द एस फेज, एस फेज है ना जो यहाँ पे होती है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन,
ठीक है, अभी मैंने बोला था एक स्पेसिफिक स्टेज पे आपके डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो डीएनए रेप्लिका है जो, मतलब उसकी कार्बन कॉपीज डीएनए की बननी है, वो आपके एस फेज में बनेगी। क्लियर? अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स होता जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल होता जाएगा, बट इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, मेल गैमेट्स है तो मेल ही बनाएंगे, फीमेल गैमेट्स है तो फीमेल बनेगा, राइट? तो एनिमल सेल्स में क्या होता है कि रेप्लिकेशन शुरू होती है न्यूक्लियस में। ठीक है, डुप्लीकेट्स होती है इसके सेंट्रियोल से, डुप्लीकेट्स होती है साइटोप्लाज्म में। क्लियर? ये देखिए, डुप्लीकेट्स मतलब उसकी रेप्लिका, उसके जो डॉटर सेल्स बनने हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, रेप्लिकेशन हुई, दो डॉटर न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, डॉटर सेल्स बन गए। ये सब क्लियर हो गया? G1 phase clear है, S phase clear है, move to the G2 phase. Now what happened in the G2 phase? It is the second growth phase. That's why it is called the G2 phase. वो भी ग्रोथ फेज था जिसमें मशीनरी डीएनए वगैरह की बन रही थी, इंटरवल था बिटवीन द माइटोटिक एंड द डीएनए रेप्लिकेशन फेज में, सेल्स की कंटिन्यूटी बढ़ाए रखने के लिए वो इंपॉर्टेंट था। अभी G2 क्या करता है? जो ग्रोथ सेकेंड फेज है, ये सेल की ग्रोथ कंटिन्यू करवाएगा, ये भी सेल की ग्रोथ कंटिन्यू करवाएगा, ये भी आरएनए सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इट ऑल्सो prepared the cell for mitosis. Now that your G1 phase was what was doing? DNA machinery को prepare कर रहा था। ठीक है, now what it will do? This will do the preparation for the mitosis. Remember this. Move to M phase. M phase में भी क्या हो रहा है? जो एक्चुअल डिवीजन होनी है ना सेल्स की, वो होनी है आपके एम फेज में। ठीक है, ह्यूमन सेल है, अभी क्या बोला कि ये 1 घंटे तक कंटिन्यू काम करता है, इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट द एन आवर। ठीक है, अभी एम फेज में दो प्रोसेसेस चलेंगी, एक तो कैरियोकाइनेसिस काइनेसिस हो गया, काइनेसिस होगी, दूसरा साइटोकाइनेसिस होगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मैं फिर से बोल रही हूँ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। यहीं से आपको सेल अंडरस्टैंड होना शुरू होगा। जब जी फेज, G1 फेज, G2 फेज, एस फेज, एम फेज, इन सब के बारे में डिटेल पता होगी कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड विद इन आवर सेल्स, हाउ डज इट वर्क, राइट? Apart from the preparation of the machinery and all, your emphasis actively proceed now. How it will proceed? It divide, or it includes the two type of the processes. One is your karyokinesis, number two is your cytokinesis. What happens in the karyokinesis? Kinesis means splitting, division. किस चीज की? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस की। ये देखिए ऐसे होगा, इस तरह से न्यूक्लियर डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या होगा कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस, राइट? अभी देखिए, ये डॉटर सेल्स थे, ये स्प्लिट हो गए विद द प्रोसेस ऑफ द साइटोकाइनेसिस इनटू द इंडिविजुअल वन, राइट? व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द एम्फिस? जितने भी आपके सेल्स है ना, मतलब वो जनरली सम सेल्स डू नॉट शो द डिवीजन। ठीक है, जैसे कि हार्ट सेल्स नहीं डिवीजन दिखाते। ठीक है, कुछ और सेल्स हैं डिवाइड ओकेजनली, मींस रिप्लेस डैमेज और डेड सेल्स को करने के लिए आते हैं, तब अपनी डिवीजन दिखाते हैं। ठीक है, वो एम फेज से होती है सब चीजें। फिर G1 फेज, G2 फेज, एम फेज। अभी क्या है कि जो सेल्स है ना, वो डिवाइड नहीं होते, फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, आगे जाके डिवाइड नहीं होते, वो G1 फेज में एग्जिट कर जाते हैं एंड एंटर इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द G0 फेज। इस चीज को मैं क्लियर करूंगी। अभी क्या हो गया कि आपका G1 फेज से एग्जिट हो गया, सेल्स डिवाइड होके, डिवाइड नहीं होंगे इससे आगे। ठीक है, जब सेल एग्जिट होगा G1 फेज से एंड वो एंटर होगा एक इनएक्टिव स्टेज पर, सेल ने डिवाइड हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद सेल डायरेक्टली एक्टिव नहीं हो रहा, मतलब स्प्लिट नहीं हो रहा, वो एंटर कर जाएगा इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? आपका उस चीज को हम क्यूसेंट
स्टेज बोलते हैं और G0 फेज बोलते हैं। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रही, कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रही, कोई सिंथेसिस नहीं हो रही, ये इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, बट एक चीज है, यहाँ पे मेटाबॉलिकली सेल्स एक्टिव रहेगा बट प्रोलिफरेट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा सेल, इट विल जस्ट रिमेन स्टेबल। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। सेल साइकिल इट्स वर्क लाइक दिस। सो सेल साइकिल यहाँ पे क्लियर हो गया। Let's move to your next part, that is your mitosis. Now what is happening in the mitosis? Very important process। जो सेल डिवीजन होती है ना इन सोमैटिक सेल्स में, ठीक है, और वो इक्वेशनली डिवीजन होती है, इसे हम इक्वेशनली डिवीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, किस चीज की? क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स नंबर की डिवीजन होना, ठीक है, पेरेंट से डॉटर सेल्स बनना, सेम प्रोजेनी वाले आइडेंटिकल सेल्स बन जाने। ठीक है, और ये जो माइटोसिस है जनरली डिप्लॉयड सेल्स में देखी जाती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोअर जो प्लांट्स हैं और कुछ इंसेक्ट्स में उसमें हैप्लॉइड सेल्स में होती है, अदरवाइज ये डिप्लॉयड सेल्स में होती है, राइट। और रीऑर्गेनाइजेशन सेल कंपोनेंट्स की होती है कि ऑर्गेनाइज्ड मतलब वही सेल्स आगे जाके अपने डॉटर न्यूक्लियस सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, वही सेल्स वही ऑर्गेनाइज वैसा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट उनका फर्दर आगे सेल्स में जाना। जो माइटोसिस है, माइटोसिस नॉट मेयोसिस, माइटोसिस इज कंप्लीटेड इनटू द 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, राइट। व्हाट इज हैपन इन द प्रोफेज? जो आपका प्रोफेज है ना, ये लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस का। प्रोफेज इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस। इसमें 2 चीजें फॉलो होंगी, एक तो ये एस फेज को फॉलो करेगा, दूसरा ये G2 फेज को फॉलो करेगा, वही जो आपके इंटरफेस वाले हैं। ठीक है, अभी S एंड G2 फेज है, वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल्स इंटरवाइंड होंगे, ये देखिए इंटरवाइंड हुए हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अर्ली प्रोफेज हो गया, लेट प्रोफेज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द लेट प्रोफेज? जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना, वो अनटैंगल्ड हो गया, ये देखिए खड़बड़ा सा हो गया ना, ये देखिए उथल पुथल सी हो रखी है यहाँ पे, ये कंडेंस्ड हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होने के लिए क्रोमोसोम्स माइटोटिकली कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, तो इस मतलब इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी क्रोमैटिड्स थे ना, क्रोमैटिड्स थे, वो अटैच है एक दूसरे के साथ, किस चीज से? सेंट्रोमेर्स के साथ। दे आर अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमर। ठीक है, अभी जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये बिगिन टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। अभी ये सेंट्रोमर्स हैं, आप यहाँ से देखो, ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाने शुरू हो चुके हैं, ये देखिए इस तरफ जाएंगे ये लोग। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट टुवर्ड्स द पोल जाने की, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग दमसेल्फ। ईच जो सेंट्रोमर है वो रेडिएट्स कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये देखिए ये जो छोटे छोटे से ये प्रोजेक्शंस देख रहे हैं ना बन रही हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रोजेक्शंस की तरह बन रही है, और इसको हम एस्टर्स बोलते हैं, ASTERS। ये दो दो एस्टर्स हैं, ये आपस में जुड़ के एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर देंगे, जो आपको फर्दर स्टेजेस में पता चलेगा हाउ द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड हाउ योर माइक्रोसोम्स आर अटैच्ड ऑन दोज स्पिंडल फाइबर्स, राइट। सो ये एक तरह से माइटोटिक अपरेटस बन रहा है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगी और यहाँ पे ये आपका माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू होगा। उसके बाद अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज होने के बाद आपका आ गया प्रोफेज। यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोफेज होता है, डू नॉट शो, कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। उसके बाद जब स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म हो गया इन द प्रोफेज, ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल आने शुरू हो गए थे। ठीक है, आ जाती है आपकी मेटास्टेज। अभी मेटास्टेज में क्या है कि न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई है न्यूक्लियर इन्वेलप, डिसइंटीग्रेट होगी, जिससे क्या हो गया, आपके क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो गए, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स थे वो स्प्रेड हो गए, कहाँ पे? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंसेशन इज कंप्लीट होगी, कंडेंस्ड होने कंप्लीशन वो कंप्लीट हो गया। अभी क्या है कि ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, they will have show the 2 sister chromatids। ये रही स्पिंडल फाइबर, ये रहा आपका मेटाफेज। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर्स में आपको यहाँ
बढ़ाती हूँ। क्रोमोसोम्स क्लाइम टू लाई एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे जाने शुरू हो गए, पोल्स पे जाने शुरू हो गए। अभी प्लेन अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। ये देखिए अपनी अपनी प्लेट्स पे अपने स्पिंडल फाइबर के स्पेसिफिक एरिया में जाके कंबाइन हो गए ना क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। जो आपके स्पिंडल फाइबर है वो बोथ पोल्स पे है, दिस इज योर स्पिंडल फाइबर, दिस इज योर, both poles are connected by to the chromatids by their chetochores in the centromere। ठीक है, इस स्टेज पे क्या हो गया, इस स्टेज पे तीन चीजें हुई हैं। नंबर वन, आपकी जितना भी न्यूक्लियर एनवेलप था वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया। उससे क्या हो गया कि जितनी भी कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स थी, कंडेंस्ड होने थे जितने भी, वो हो चुके हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन चुके हैं। नंबर थ्री, मेटाफेज पे ये चीजें आके इक्वेटर पे जुड़ गई हैं। आपके जितना भी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना था वो हो चुका है, एंड आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो स्पिंडल फाइबर पे आके अटैच हो चुके हैं। दिस इज द ओनली थिंग हैपन इन योर मेटाफेज। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज योर एनाफेज। अभी एनाफेज पे क्या है, ये शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रोमर्स है ना, ईच क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमर्स है, दीज आर कॉल्ड द सेंट्रोमर्स। ये ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द सेंट्रोमर्स। ये लॉन्गिट्यूडनली मतलब डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे कोई चीज को हम मैग्नेट की तरह खींच रहे होते हैं ना, तो मैग्नेट से दूर करते हैं तो वो एक तरह से स्प्लिट हो जाता है। वो जो ये कनेक्शन है वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, वो ही स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे दो दो डॉटर सेल्स बनने शुरू हो गए, क्रोमैटिड्स। ठीक है, अभी स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इफ यू सी यहाँ पे कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इस फेज में, स्पिंडल फाइबर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। आपके क्रोमैटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर जा रहे हैं, ये देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी पीछे की तरफ पोल्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमैटिड स्प्लिट हो गए, मतलब टू डॉटर आपके क्रोमैटिड्स फॉर्म्ड हो गए, एंड स्पिंडल फाइबर्स गॉट श्रिंक्ड एंड इट गोज टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, इक्वेटर की तरफ जाने शुरू हो गए। नेक्स्ट आपका आ गया टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है कि क्रोमोसोम्स क्लस्टर, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स, ये देखिए ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम्स का क्लस्टर बन गया, ये अनकॉइल हो गए इनटू द क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, ये देखिए ये टीलोफेज था, ये आपके स्पिंडल फाइबर स्प्लिट हो गए, जो डॉटर क्रोमोसोम्स थे वो भी स्प्लिट हो चुके हैं एंड क्रोमैटिन फाइबर्स बन चुकी हैं। न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे असेंबल करेगा क्रोमैटिन फाइबर्स को। कवर कर लिया, न्यूक्लियर एनवलप जनरेट हो गया, दोनों डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज यहाँ पे हो रही है कि न्यूक्लियोलस, गोल्गी ऑपरेटस एंड ईआर रीअपीयर, फिर से दिखने शुरू हो गए। 10 जो आपकी जितनी भी स्पिंडल फाइबर थी यहाँ पे डिसअपियर हो गई। क्लियर, टीलोफेज में क्या हो गया, टीलोफेज में सिंपल कुछ नहीं हुआ, जो आपके क्रोमैटिड्स थे वो एंड ऑफ द पोल्स चले गए, वहां पे जाके श्रिंक होने शुरू हो गए क्रोमैटिन्स, और उनको कवर करने के लिए जो डॉटर क्रोमैटिन्स थे उनको कवर करने के लिए आपके न्यूक्लियर एनवलप जनरेट हो गई। न्यूक्लियर एनवलप के जनरेट होने के साथ साथ न्यूक्लियोलस आ गया, जितनी भी ऑर्गेनेलिस थी सारी प्रेजेंट हो गई, गोल्गी ऑपरेटस आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जितना भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ रफ, वो सारा वहां पे आ गया, एंड आपका जो ईआर है, ठीक है, वो रीअपियर होना शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो रही है। ये चीजें हुई हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अभी क्या है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी, डॉटर आपके जो सेल्स थे वो फॉर्म्ड हो गए। अभी यहाँ क्या है, टीलोफेज अभी भी प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, इट स्टार्ट व्हेन टीलोफेज इज इन प्रोग्रेस, ये तभी शुरू हो जाएगा जब आपका टीलोफेज में ये सब चीजें सेपरेट हो रही है ना, एंड उसके बाद आपके जितने भी ऑर्गेनेलिस थी वो उनकी फॉर्मेशन शुरू हो रही है, तभी जाके इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस विल स्टार्टेड। ठीक, ये देखिए साइटोकाइनेसिस, क्लीवेज फिर बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इट इज ग्रेजुअली, ये देखिए साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, डिफरेंट सेल्स बन गया। ठीक, प्लांट सेल में कुछ इस तरह से दिखती है, ये वेसिकल्स होती हैं, ये सेल वॉल है, ये आपका न्यूक्लियर एनवलप है, ये सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा वेसिकल्स थी, ये थोड़ा इनलार्ज होगी वेसिकल्स,
इन लार्ज वेसिकल्स जैसे जैसे हो रही हैं आपके एक शील्ड और डिवाइडर की तरह इट इट विल वर्क। ये सारी सेल प्लेट है ना जो ये डिवाइडर की तरह काम करेगी और फ्यूज कर देगी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, इन प्लांट्स कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है या फिर ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं दोनों न्यूक्लियर सेल्स में जो बाकी एनिमल सेल्स में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस नहीं होती। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, साइटोकाइनेसिस के थ्रू कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, जिसका मतलब यहाँ मल्टी न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं डिवाइड होगा तो मल्टी न्यूक्लियट बन जाएगी ना कंडीशन। तो इन दैट वे यहाँ पे प्लांट सेल्स में मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है। ये थोड़ा सा ओवरऑल स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। सी, इंटरफेस था, न्यूक्लियस है, सेंट्रोमियर्स साइड पे है। ठीक है, प्रोफेज आया, ये देखिए जितने भी आपके सिंगल पेरेंट्स क्रोमेटिड थे वो क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं, सेंट्रोमेर भी डबल हो चुके हैं हो चुका है। उसके बाद मेटाफेज आया, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गई आपकी जितने भी क्रोमेटिड्स थे, राइट। स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड है। मेटा प्रोमेटाफेज है ये। प्रोमेटाफेज के बाद जो एक कांस्टेंट एक स्टेबल स्टेज आती है दैट इज योर मेटाफेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेट पे जो आपके इक्वेटर्स पे साइड पे आपके सेंट्रोमर चला गया, ये सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ गए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एनाफेज। एनाफेज में ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए एंड इट गोज टूवर्ड्स द इक्वेटर पोल, जो की स्प्लिंडर फाइबर थी उसने ब्रेक हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर हो गया। लेट मी जूम इन लिटिल बिट, यू विल अंडरस्टैंड मोर। ये देखिए सेंट्रोमर्स बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं, आपका स्पिंडल फाइबर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेलप जो न्यूक्लियर इन्वेलप बननी शुरू हो जाएगी, सेल डिवीजन बिगिन हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुई, काइनो साइटोसोल में आपका जो डिवीजन होनी शुरू हो गई। उसके बाद सेल डिवाइड हो गया टू डिफरेंट न्यू फ्रेश डॉटर सेल्स में। इस तरह से प्रोसेस, इस माइटोसिस को फॉलो करते हुए ये आपकी जो टू सेल कैट सेल्स में आपके डॉटर सेल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका माइटोसिस एंड सेल साइकिल का जो आपको इनिशियल जो पाथवे है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, आई होप। ठीक है, नहीं कोई क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, नहीं कोई आपको डेफिनेशन या कोई स्टेप क्लियर हुआ, प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। आपकी जो म्योसिस प्रोसेस है उसे हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। सो स्टे ट्यून एंड आप इस चैनल को देखते रहिए एंड whatever the question you have, again I'm saying mention me in the comment section. Thank you so much.